جو بات چیت ہمارے سامنے ہے وہ گزشتہ سے پیوستہ ہے۔ پچھلی دفعہ ہم نے چند ایک باتیں جو ہیں وہ کلام کی سیکھی تھیں، دیکھی تھیں، اور اسی ضمن میں چند ایک اور باتیں جو ہیں وہ میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ پچھلی دفعہ جب ہم جمع ہوئے تھے تو ہم نے جو ہے وہ ریلیجن یا کنگڈم، مذہب یا بادشاہی، ان میں سے کون سی چیز جو ہے وہ ضروری ہے۔ ہم میں سے سبھی یہ جانتے ہیں کہ خدا کی بادشاہی جو ہے یہ سب سے ضروری بات ہے، لیکن اس کے باوجود جو ہے ہم اس میں ڈفرینشیٹ نہیں کر پاتے کہ مذہب کیا ہے اور بادشاہی کیا ہے۔ جب ہم مذہب کی بات کرتے ہیں تو یاد رکھیں کہ مذہب جو ہے وہ سارے ہی مذہب زمین پہ ہیں، اور مسیحیت بھی ان مذہبوں میں سے ایک مذہب ہے۔ تو جب تک ہم اس میں سے باہر نہیں نکلتے اس وقت تک ہم خدا کے پلان اور خدا کے اس الہی پروگرام کو جو وہ ہمارے لیے رکھتا ہے اس کو پوری طور پہ جان نہیں پاتے اور سمجھ نہیں پاتے۔ آج جو ہے ہر انسان جو ہے وہ کچھ ڈھونڈ رہا ہے۔ پوری دنیا میں جو مذاہب ہیں اور مذاہب کے اندر پائے جانے والے لوگ ہیں وہ کچھ ڈھونڈ رہے ہیں۔ وہ اس لیے ڈھونڈ رہے ہیں کیونکہ کچھ گم ہو گیا ہے، کچھ ہے جو کھو گیا ہے، اور وہ اس کھوئی ہوئی چیز کی تلاش کر رہے ہیں۔ اور میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ جو کچھ کھویا ہے اس کی تلاش مذہب میں نہیں کی جا سکتی، کیونکہ انسان جو ہے اس نے مذہب کو نہیں کھویا ہے، اس نے باغ عدن کو کھویا ہے۔ انسان جو ہے اس نے کبھی بھی کسی فرقے کو نہیں کھویا بلکہ اس نے خدا کی حضوری کو کھویا ہے۔ جو انسان ہیں انہوں نے کسی ریلیجن کے سیکٹ کو نہیں کھویا ہے، انہوں نے خدا کی بادشاہی کو لوز کیا ہے۔ جب تک باغ عدن، خدا کی بادشاہی، خدا کی حضوری زندگیوں میں ریسٹور نہیں ہوتی اس وقت تک ان کی زندگی میں وہ اطمینان نہیں آ سکتا، وہ حقیقی پیس نہیں آ سکتا جس کی تلاش کی جا رہی ہے، کیونکہ وہ کھویا ہی نہیں، آپ نے وہ لوز ہی نہیں کیا۔ جس چیزوں کو ہم ڈھونڈتے چلے جاتے ہیں، اگر آپ یسایہ نبی کا صحیفہ اس کا 45 باب اور اس کی 18 آیت پڑھیں تو اس آیت میں آپ کو پتہ چلے گا، خدا کے کلام میں لکھا ہے، اس کا لب لباب یہ ہے کہ خدا نے زمین کو بنایا ہے تاکہ اس کو آباد کرے، اور دوسری اہم بات اس میں لکھی ہے کہ خدا نے زمین کو عبث نہیں بنایا۔ عبث کا مطلب ہے فضول نہیں بنایا۔ خدا نے یوں ہی زمین نہیں بنا دی، خدا کبھی بھی کوئی بھی کام عبث نہیں کرتا۔ خدا نے زمین کو بنایا ہے، اور زمین کو بنانے کا اس کا پرپس یہ ہے کہ وہ آباد کی جائے۔ کس چیز سے آباد ہو؟ خدا کی بادشاہی سے اس کو آباد کیا جائے۔ یہ پلان اور یہ پروگرام تھا خدا کا کہ زمین جو ہے وہ خدا کی بادشاہی سے جو ہے اس کو آباد کر دیا جائے۔ لیکن ہر ایک مذہب جو ہے
वो किन चीजों के गिर्द घूमता है? एक ही चीज के गिर्द घूमता है, सारे मज़ाहिब। वो क्या है कि हमने आसमान पे चले जाना, आसमान पे चले जाना, आसमान पे चले जाना। हिंदू जो है, बुद्ध जो है, हमने बदल बदल के बेहतर पोजीशन में जाना है। मुसलमानों को जन्नत चाहिए, क्रिश्चियनों को चाहिए कि हवा से उड़ जाना है। हम सारे मज़ाहिब के लोग जो हैं वो आसमान पे जाना चाहते हैं। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि जो बाइबल मुकद्दस है, इसका फोकस जो है वो इंसान के लिए आसमान से पहले जमीन है। बाइबल मुकद्दस का फोकस जो है वो ये नहीं है कि आप जमीन पे आके तो आसमान पे जाने के मुतालिक ही सोचते हैं। आप सोचें या ना सोचें, आसमान पे जाने ही जाना। आप नहीं भी कोई सोचता, जो नहीं भी मानता कि खुदा है, आसमान है, उसकी हजूरी है, वो भी मर जाएंगे और वो भी जाएंगे। तो हमने जब जमीन पे खुदा हमें लेके आया है तो हमने जो है इस चीज पर गौर करना है। जब खुदा यीशु मसीह जमीन पर आए तो खुदा यीशु मसीह का फोकस क्या था? खुदा में यीशु मसीह का फोकस जो था वो ये था कि जमीन के ऊपर आपने रहना है। जब शागिर्दों ने कहा कि हमें दुआ करना सिखा, तो खुदा ने क्या की, पूरी जो ए हमारे बाप है वो दुआए रूबानी नहीं है, वो दुआए शागिर्दी है। शागिर्दों को सिखाया कि क्या दुआ आपने करनी है। तो उस पूरी दुआ में खुदा ने ये नहीं कहा कि हमने आसमान पे चले जाना, हमें आसमान पे जाने की तैयारी बख्श। नो, जैसे तेरी मर्जी आसमान पे पूरी होती है उसकी फिक्र नहीं करनी हमने। आसमान पे ही इज इन फुल कंट्रोल ऑन हेवन। वैसे ही तेरी मर्जी जमीन के ऊपर आए, जमीन के ऊपर पूरी हो। उस पूरी दुआ का फोकस जो है वो आसमान नहीं है, उस पूरी दुआ का फोकस जमीन है। किसी वक्त हम ये जो ए हमारे बाप है इसको स्टडी करें। ए हमारे बाप पढ़ने के लिए नहीं हमें सिखाई, ये एक फॉर्म है, ये टेम्पलेट है, ये एक जो है वो फॉर्म की तरह है जिसको आपने भरना है। उस तरीके से आपने खुदा के हुजूर में शागिर्दों को बताया गया कि आपने दुआ करनी है। आपको कोई कंपनी कहे, आपका स्कूल कहे जहां आपने दाखिला लेना है कि ये फॉर्म भरना है आपने, और आप वो फॉर्म लेके एज इट इज उसके पास चले जाएं तो आपको दाखिला नहीं मिलेगा। उन्होंने कहना है कि जी आपने तो इसको फिल ही नहीं किया। तो जो दुआए रूबानी है ये टेम्पलेट है, ये फॉर्म है। ये बताया गया है कि किस तरह से आपने प्रेयर करनी है, पहले क्या है, उसके बाद क्या, उसके बाद क्या है। और हमने उन चीजों के मुताबिक जो उसमें लिखी और बताई है खुदावन ने, हमने दुआ करनी है। सो खुदा ने क्या यशायाह की किताब में लिखा 45 बाब की 18 आयत में कि खुदा ने जमीन को आबाद करने के लिए बनाया है। ये खुदा का प्रोग्राम और ये खुदा का मंसूबा है। और अगर सारे आसमान पे जाना चाहते हैं, सारे मजहब जो हैं, अगर खुदा उनकी सुन ले कि हमने आसमान पे जाना है, तो खुदा साहब को आसमान पे ले जाए तो जमीन खाली हो जाएगी। और अगर खुदा जमीन को आबाद करना चाहता है और जमीन खाली हो जाएगी तो इसका मतलब है खुदा का प्लान और खुदा का प्रोग्राम जो है वो फेल हो जाएगा, खुदा का प्रोग्राम जो है वो कैंसिल हो जाएगा। और हमने याद रखना है कि खुदा का कोई प्रोग्राम, खुदा का कोई प्लान कभी फेल नहीं होता। इसलिए खुदा खुद जमीन पे आएगा और वो 1000 साल तक बादशाही करके दिखाएगा कि कैसे इसको आबाद करना है, कैसे यहां पे रहना है, कैसे बादशाही करनी है, किस तरीके से हुकूमतों को चलाना है। और जब खुदा उस वक्त आएगा, मसीह आएगा, तो वो पॉलिटिकली जो है वो हुकूमत करेगा और बाकायदा तौर पे जैसे आज पॉलिटिकल गवर्नमेंट्स हैं उसी तरह वो गवर्नमेंट को कायम करके 1000 साल तक बादशाही करेगा। उस वक्त जो लोग जिंदा होंगे उनकी कम से कम उम्र जो होगी वो 100 साल होगी,
جب کوئی 100 سال کا ہو کے مرے گا تو آپ کہیں گے کہ یہ بچپن میں ہی مر گیا ہے، کیونکہ اس پر عمر کتنی ہوگی؟ 1000 سال عمر ہوگی۔ 1000 سال کے لیے وہ آئے گا اور 1000 سال کے لیے وہ زمین پر بادشاہی کرے گا۔ تو مسیح کی دعا جو انہوں نے سکھائی ہے اس میں خدا نے ایسا کوئی ذکر نہیں کیا ہے۔ مسیح کی دعا کہاں پہ آپ پڑھتے ہیں ڈیٹیل سے؟ یوحنا کی انجیل کے 17 باب کو، جان کی جو گاسپل ہے 17 چیپٹر کو اگر آپ پڑھیں تو اس کے اندر جو دعا ہے یہ مسیح کی دعا ہے، یہ وہ دعا ہے جو مسیح نے کی ہے۔ اور اگر آپ 17 باب میں اگر آپ اس کی 11 آیت پڑھیں تو مسیح نے دعا کی کہ کہا کہ یہ دنیا میں ہے، اور اگر آپ اس کی 18 آیت پڑھیں تو لکھا ہے میں انہیں دنیا میں بھیجتا۔ اگر آپ اس کی 14 سے 16 آیت پڑھیں تو لکھا ہے یہ دنیا کے نہیں ہیں مگر یہ دنیا میں ہیں تاکہ تیرا جلال ظاہر کرے۔ تو خداوند اس جگہ پہ کیا بار بار دعا کر رہا ہے؟ خداوند بار بار دعا کر رہا ہے کہ یہ دنیا میں ہے، میں انہیں دنیا میں بھیج رہا ہوں، یہ دنیا میں رہیں گے، اور ہم جو ہیں باقی سارے مذاہب جو ہیں ہم سب آسمان پہ جانا چاہتے ہیں۔ آپ یہ غور کریں کہ سارے مذاہب دعا کر رہے ہیں ہم آسمان پہ چلے جائیں، مسیح دعا کر رہا ہے میں نے انہیں دنیا میں رکھا ہے، میں انہیں دنیا میں بھیج رہا ہوں۔ آپ دعا کر رہے ہیں ہم نے آسمان پہ جانا ہے، مسیح دعا کر رہا ہے یہ دنیا میں رہیں۔ آپ اپنا حساب لگائیے کس کی دعا زیادہ پر اثر ہے؟ آپ کی دعا پر اثر ہے کہ مسیح کی دعا پر اثر ہے؟ جب آپ وہ دعا کرتے ہیں جو کلام کے اگینسٹ ہے، جب آپ وہ دعا کرتے ہیں جو کلام کے منافی ہے، تو وہ دعا پوری نہیں ہو سکتی۔ وہ دعا جو ہے وہ کینسل ہو جاتی ہے، وہ کہیں نہیں دیواروں سے چھت سے ٹکرا کے واپس آ جاتی ہے، کیونکہ وہ دعا کلام کے اگینسٹ ہے یا کلام کے مطابق نہیں ہے۔ مسیح دعا کر رہے ہیں یہ دنیا میں رہیں، جہاں پہ آپ کو بھیجا گیا ہے۔ جب آپ اس ٹارگٹ کو جس کے لیے اس کو شخص کو بھیجا گیا ہے جب وہ پورا کر لیتے ہیں، کامیاب ہو جاتے ہیں، کامیاب ہو کے جب آپ واپس اپنی ڈیسٹینیشن پہ آتے ہیں تو پھر سیلیبریشن ہوتی ہے۔ خدا نے جس کام کے لیے ہمیں بھیجا ہے، جب ہم اس دنیا میں ہیں تو آپ نے یہ دعا نہیں کرنی ہمیں آسمان پہ لے کے جا، ہم نے یہ دعا کرنی ہے مجھے زمین پہ رہنا سکھا، مجھے بتا کہ زمین پہ مجھے کیوں تو نے بھیجا ہے۔ اب گناہ کی وجہ سے ہمارے روحانی کان، ہماری روحانی آنکھیں اور روحانی ذہن بند ہو گیا ہے۔ ہم نے خدا سے پوچھنا ہے ہمیں بتا ہم یہاں کیوں آئے ہیں، تو مجھ سے کیا چاہتا ہے؟ جب ہم یہ پوچھیں گے وہ ہمیں بتائے گا، خواب میں، رویا میں، وحی میں، گیتوں میں، دعاؤں میں، کلام میں، کہیں نہ کہیں خدا آپ سے کلام کرے گا اور آپ کو پتہ چلے گا آپ کیوں زمین پہ آئے ہیں۔ تو آپ نے اس کام کو کرنا شروع کر دینا ہے، اور بعد میں جب آپ اور میں اس دنیا سے رخصت ہوں گے ہم آٹومیٹیکلی درست جگہ پہ پہنچ جائیں گے۔ سو ہم نے اپنی دعاؤں کو درست کرنا ہے، ہم نے اپنی سوچوں کو درست کرنا ہے۔ اگر وہ درست نہ ہوئیں تو نقصان ہو جائے گا۔ خدا نے جب آدم اور حوا کو بنایا تو پہلی چیز ان کو کیا دی؟ خدا نے ان کو جو پہلی چیز دی وہ بادشاہی تھی، کنگڈم تھی۔ کیا کہا؟ تم پھلو بڑھو اور زمین کو معمور اور محکوم کر لو، حاکم ہو جاؤ اس کے اوپر۔ تو جو پہلی چیز ہے جو ان کو دی گئی ہے وہ خدا نے ان کو بادشاہی دی، ان کو کنگڈم دی، ان کو جو ہے ٹیریٹری جو ہے اس کی حاکمیت دی کہ تم نے اس کو کنٹرول کرنا ہے۔ اور اس لیے مجھے اور آپ کو یاد رکھنا ہے کہ ہم جو ہیں، ہم کا مطلب کرسچنز نہیں ہے، ہم کا مطلب سارے انسان ہیں۔
सारे इंसान जो हैं वो कंट्रोल होने के लिए नहीं, कंट्रोल करने के लिए बनाए गए हैं। इसलिए जब भी कोई चीज उनको कंट्रोल करेगी वो पागल हो जाते हैं, वो ज़हनी तौर पे बीमार हो जाते हैं। वो मर्द हो, वो औरत हो, वो बच्चा हो, वो बच्ची हो, कोई भी हो, क्योंकि वो कंट्रोल करने के लिए तख्लीक नहीं किए गए। उन्हें बीमारी कंट्रोल करे, उन्हें बिल कंट्रोल करे, उनको कर्जा कंट्रोल करे, वो चीजें कुछ भी उनको कंट्रोल करे, वो जो है वो शॉर्ट सर्किट हो जाते हैं, उनको पता नहीं लगता क्या करें। क्यों? क्योंकि कोई चीज उनको कंट्रोल करना चाहती है और वो कंट्रोल के लिए तख्लीक नहीं किए गए, उनके अंदर ये चीज रखी नहीं गई है। उनका जो ब्लूप्रिंट खुदा ने बनाया है, उनकी जिंदगी का जो एसन है, वो इसके लिए आपको उसने क्रिएट ही नहीं किया कि आप कंट्रोल किए जाएं। आपको इसलिए बनाया है आप कंट्रोल करें। इसलिए जब हम जिंदगी में चलें तो मुझे और आपको इन चीजों का ख्याल रखना है। हम ऑपरेस होने के लिए नहीं बनाए गए हैं, हम हुकूमत करने के लिए बनाए गए हैं। सारे इंसानों को खुदा ने बनाया है ताकि वो हुकूमत करें, वो इख्तियार रखें, वो अथॉरिटिव जिंदगी बसर करें। जैसे ही इस चीज में से लोग जो हैं वो फील करेंगे, कोई भी फील करेगा कि ये मिसिंग है मेरी जिंदगी में, इस रिलेशन में, तो वो जिंदगी रिएक्ट करेगी। क्यों? इसलिए क्योंकि ये उसकी नेचर के अगेंस्ट है, वो इसके लिए बनाए नहीं गए। इसलिए हमने ख्याल करना है। तो जब शागिर्द खुदावंद यीशु मसीह से मिले हैं, तो खुदावंद यीशु मसीह से मुलाकात जब उन्होंने की है, तो उन्होंने पहले शख्स को देखा है अपनी जिंदगी के अंदर जो हर एक चीज को कंट्रोल कर सकता है, हर एक चीज जो है उसके इख्तियार को मानती है। वो कंप्लीट डोमिनियन जो खुदा ने दी थी उसको उन्होंने मसीह की जिंदगी में देखना शुरू किया है। They were impressed, they were blessed. Yes, ये जिंदगी होनी चाहिए, क्योंकि इसके लिए उनको भी बनाया गया है। मसीह ने वो जिंदगी जमीन पे गुजारी जो आदम को गुजारनी थी। मसीह उस तरह जिया जमीन पे आके जैसे आदम को जीना था। मसीह ने वो किया जो आदम को करना चाहिए था, लेकिन वो उसमें नाकाम हो गया। और शागिर्दों ने इस जिंदगी को देखा है, खुदा यीशु मसीह को देखा है कि ये जो है ये हर एक चीज को कंट्रोल कर सकता है। ये मछलियों को बुलाता है, मछलियां आ जाती हैं। ये दरख्त से बात करता है, दरख्त सूख जाता है। ये बदरूहों के साथ बात करता है, वो भाग जाती हैं। ये मौत से बात करता है, मुर्दे जिंदा हो जाते हैं। ये कंट्रोल करता है, ये बीमारियों से बात करता है, ये बैक्टीरिया से बात करता है, ये वायरसेस से बात करता है, और हर किस्म का कैंसर, गैंग्रीन, हर किस्म का कोड़ जाता रहता है। ये कंट्रोल करता है, हर एक चीज इसका हुक्म मानती है। ये तूफानों से बात कर सकता है जैसे मैं इंसानों से बात कर सकता हूं। ये उठता कहता है स्टॉप, तूफान थम जाते हैं। व्हाट अथॉरिटी। पहली शख्सियत जिनको उन्होंने देखा है कि ये कंट्रोल कर सकती है। मसीह सब कुछ कंट्रोल करता था, एक चीज जिसको उसने कंट्रोल नहीं किया वो थी इंसान। मसीह ने इंसान को कंट्रोल नहीं किया क्योंकि मसीह जानता था इनको मैंने इस काम के लिए बनाया ही नहीं। मसीह ने अगर किसी को शिफा भी देनी है, उसने पूछ के देनी है, क्या तू चाहता है कि मैं तेरे लिए शिफा के लिए दुआ करूं? क्या तू शिफा पाना चाहता है?
वो उनकी भलाई का काम भी करना है तो उनसे पूछ के करना है, उनकी मर्जी रजामंदी शामिल होनी चाहिए, क्योंकि वो इसके लिए बनाए गए हैं। वो इस तरह मसीह ने उनको डिजाइन किया है, ये उसकी कारागरी है, वो जानता है ये कौन है। अगर वो हर एक चीज को अपनी कुदरत के कलाम से संभालता और बुलाता है, हर एक चीज को वो ठीक और दुरुस्त कर सकता, कायनात की हर एक चीज से बात कर सकता, वो उसका हुक्म मानती है, लेकिन उसने यहूदा इस्करियोती को कंट्रोल करने की कोशिश नहीं की। जब उसने इरादा कर लिया कि उसने गुनाह करना है, उसने इरादा कर लिया कि उसने मसीह को बेचना है, उसने उसको पाक शराकत तक अपनी मेज पे अपने हाथों से खिलाई। जब उसने देखा कि नहीं ये चेंज नहीं होना चाहता, तो उसने कहा जा, जो करना चाहता है कर ले। क्यों? क्योंकि मसीह जानते थे कि इंसान जिसको मैंने बनाया है ये कंट्रोल करने के लिए नहीं बनाया गया कि इनको कंट्रोल किया जाए, इनको बनाया गया है कि ये कंट्रोल करें। इसलिए जब भी जिस चीज के लिए कोई चीज बनाई गई है उससे अलग कुछ किया जाएगा तो प्रॉब्लम हो जाएगी, इसलिए उसने कंट्रोल नहीं किया। और इसको बड़ा वाइटली मसीह ने करके दिखाया ताकि मैं और आप जो हैं इन चीजों को समझ सकें। अगर मुकद्दस मत्ती की अंजील के 25वें बाब की 34वीं आयत पढ़ें, मैथ्यू चैप्टर 34 वर्स में, तो वहां पे लिखा है खुदा यीशु मसीह ने कहा कि जो राइट साइड पे लोग होंगे, खुदावंद उन लोगों से कहेगा, ए मेरे बाप के मुबारक लोगों, उस बादशाही में शरीक हो जाओ जो बनाए आलम से पेशतर तुम्हारे लिए तैयार की गई। उसको क्या कर लो? उसको मेरास में ले लो, उसको इनहेरिट कर। किसको? बादशाही को जो बनाए आलम से पेशतर तुम्हारे लिए तैयार की गई है, उसको मेरास में लो। मेरास क्या है? हेरिटेज क्या है? मेरास जो है ये वो चीज होती है जो आपका बर्थ राइट होता है, जो आपका पैदाइशी हक है, वो आपकी मेरास है। जो कुछ आपके बाप का है वो आपका पैदाइशी हक है कि आपको मिले। इसलिए जब मसीह जमीन पे आया और उसने बातचीत शुरू की तो उसने कहा कि वो खुदा नहीं है, वो खुदा से पहले तुम्हारा बाप है, ताकि तुम जान सको कि जो कुछ आसमान पे है वो सब आपका बर्थ राइट है। जो कुछ आसमान पे मौजूद है वो सब कुछ आपको मिल सकता है। खुदा ने इस बात को मसीह ने बताया कि आसमान पे कौन है। उसने कहा आसमान पे खुदा नहीं, आसमान पे तुम्हारा बाप है। और लोगों ने इस बात को समझा और इस बात को पहली तरह जाना पहली दफा कि जिसको हम खालिक कहते हैं, मालिक कहते हैं, कायनात का बनाने वाला कहते हैं, जिसको हम बादशाह कहते हैं, जिसको हम बादशाहों का बादशाह कहते हैं, जिसको हम खुदा कहते हैं, वो कौन है? वो मेरा बाप है। He is my father. Wow, what an amazing revelation. लेकिन हमने इसको इतना इस्तेमाल किया है कि ये रेवलेशन अब खत्म हो गया है, हम यूं ही कह के चले जाते हैं। आप इस बात पे आपको फख्र नहीं फील होता है जब आप पाकिस्तान में जाते हैं कि आप बाहर के मुल्कों में, यूरोप में रहते हैं, वहां पे बेहतर हालात है? यू फील बेटर कि नहीं? या दैट्स गुड। तो इस बात पे आपको फख्र नहीं महसूस होता कि हम आपके हालात अच्छे हैं, सारी चीज़ें बेहतर हैं, कोई थ्रेट नहीं है, कोई मौत नहीं है, अचानक नहीं पता यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऐसा बात नहीं है, और यहाँ पे बहुत बेहतर है सब कुछ। तो बाइबल ये कह रही है कि खुदा तुम्हारा बाप है। ये किस कदर बेहतरीन बात है। जब हम इसको जान जाते हैं, जब हम इसकी डेप्थ को समझ जाते हैं, तो फिर आपका और मेरा लेवल फर्क हो जाता है। फिर अब दुनिया में रहते हैं, दुनिया के होकर नहीं रहते।
क्योंकि आपकी जो समझ है वो ट्रांसफॉर्म हो गई है। आपको पता लग गया आप असल में है कौन। फिर आप मजहब से ऊपर निकल आते हैं, फिर आप मजहब के शिकंजे में नहीं आते, फिर आप मजहब के हथकंडों को जो है उनके काबू नहीं चलते। क्यों? क्योंकि मजहब ने आपको कहा है आसमान पे जाना, आसमान पे जाना, आसमान पे जाना की रट लगाई हुई है। बाप ने हमें कहा है कि मैंने तुम्हें यहां पे भेजा है कुछ करने के लिए, लेट मी टेल यू। और जब हमें पता लग जाता है हर एक की डिफरेंट जो है वो जिम्मेदारी है रूहानी तौर पे, जब हमें पता लग जाता है हम उसको करते हैं और फिर हम चले जाएंगे, एवरीथिंग विल बी ग्रेट। सो हमने मजहब के तौर पे नहीं जीना, हमने खुदा की बादशाही के फर्जंद के तौर पे जिंदगी बसर करनी है। अगर हम इस बात को समझ गए, अगर हम इस बात को जान गए कि वो हमारा बाप जो है वो खुदा है, तो आपकी जिंदगी में सब कुछ आना शुरू हो जाएगा। और अगर कभी कुछ ना भी आए तो अभी आपको फिक्र नहीं होगी। आपका और मेरा बाप जो है वो खुदा है, और आपके बाप के पास मजहब नहीं है, आपके बाप के पास बादशाही है, क्योंकि वो बादशाह है। जो कुछ आपके बाप के पास है नहीं वो आपको मिल नहीं सकता। अगर आपके बाप के पास कोई चीज नहीं है तो उसको आप मेरास में नहीं ले सकते। खुदा आपका बाप है और खुदा जो है उसके पास मजहब नहीं है। चूंकि उसके पास मजहब नहीं है इसलिए मजहब जो है वो आपकी चीज हो सकती है, वो आपके बाप की तरफ से मेरास नहीं हो सकती। बाप के पास बादशाही है, बागी अदन है, उसकी हजूरी है, उसको आप मेरास में ले सकते हैं। सो हमने जो है अपने आप को चेंज करना है, अपने आप को समझना है, अपने आप को जानना है जो खुदा की बादशाही। ये एक कल्चर, बादशाही क्या है एक्चुअली? कल्चर है। हम लोग वैसे स्वीडन में कहां पे रहते हैं? इट्स ए किंगडम। हम बादशाही के अंदर रहते हैं। यहां पे एक बादशाह राज करता है। बादशाही का मतलब है कि ये एक गवर्नमेंट है। बादशाही का मतलब है ये कंट्री है, वहां का कल्चर है, और वहां पे सबसे जरूरी चीज जो होगी वो जुबान होगी। क्या होगी जी? जुबान सबसे जरूरी होगी। यहां पे जब गेस्ट स्टूडेंट्स भी आते हैं पढ़ने के लिए तो यूनिवर्सिटी में उनको जो है, जो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स हैं, उनको भी स्वीडिश सिखाई जाती है, क्योंकि वो इस मुल्क की जुबान है। बादशाही जहां भी जाएगी, जिन जिन बादशाहियों ने दुनिया पे हुकूमत की है, इंडिया पाकिस्तान पे ब्रिटिश ने हुकूमत की है, ब्रिटेन ने जब वहां पे अपनी बादशाही को कायम किया है तो वहां पे पहली चीज जो उन्होंने काम शुरू किया वो जुबान थी कि जो इंग्लिश लैंग्वेज है वो उनको सिखाई जाए। फिर आप वो ऐसा ऐसा अपना पूरा कल्चर वहां पे इंट्रोड्यूस करवाते हैं। उनकी इमारतों को आप देखें, कपड़ों को आप देखें, गाड़ी किस तरह चलानी है, पहनना क्या है, खाना पीना क्या है, हर एक चीज में आपको जो बादशाही है उसकी झलक नजर आएगी। जब हम खुदा की बादशाही के फर्जंद हैं तो हमारी जिंदगी में खुदा की, आसमान की बादशाही की झलक नजर आनी चाहिए। अगर नहीं है तो इसका मतलब है हम उसकी बादशाही को जमीन पे नहीं ला रहे। और मसीह ने यह सिखाया था कि जैसी तेरी मर्जी आसमान पे पूरी होती है, जमीन के ऊपर पूरी हो। कैसे? मेरे वसीले से। सो हमने खुदा के हुजूर में, अगर आप मरकज की इंजील को पढ़ें, उसका 16 बाब और 17 आयत में लिखा है, जब लोग जो है मसीह को कबूल करेंगे, उसके शागिर्द बनेंगे, तो लिखा है वो नई नई जुबानें बोलेंगे, उनको गैर जुबानें मिलेंगी, उनको नई नई जुबानें मिलेंगी। याद रखें कि गैर जुबानें जो हैं ये मजहबी तजुर्बा नहीं है, ये कौमी तजुर्बा है।
इट्स अ नेशनल एक्सपीरियंस, ये कंट्री का एक्सपीरियंस है, ये कोई मजहबी तजर्बा नहीं है गैर जुबानें बोलना। जब शागिर्द जो है वो जमा है बाला खाने पे, खुदा का पाक रूह आया है, तो खुदा के पाक रूह ने सबसे पहली चीज उनको क्या दी है? जुबानें उनको दी है कि वो गैर जुबानों में बात करने लगे। जो इंडियन और पाकिस्तानी लोग हम जमा होते हैं, आप याद रखें उर्दू और हिंदी जो है ये इंसानों की, हमारी वहां पे रहने वालों की ओरिजिनल लैंग्वेज नहीं है। पूरी दुनिया के लोगों की, वो किसी भी मुल्क में रहते हो, उनकी जो ओरिजिनल लैंग्वेज है उसको आप गैर जुबान कहते हैं, क्योंकि हमें वो भूल चुकी है। हम वतन से बाहर आ गए हैं, इसलिए चूंकि हम भूल गई है, इसलिए अब हम उसको गैर जुबान कहते हैं। लेकिन जब गैर जुबान का आपको एक्सपीरियंस होता है और आप दुआ में गैर जुबान बोलते हैं, तो आसमान उस जुबान को समझता है। वो आसमान की ओरिजिनल लैंग्वेज है जिसको अब हम गैर जुबान कहते हैं। जब आप गैर जुबानों में बात करते हैं तो आप आसमान पे उसकी ओरिजिनल लैंग्वेज में बात करते हैं। जब आप स्वीडिश बोलते हैं यहाँ पे, और वो लोग जो नए आते हैं उनके लिए ये क्या है? ये गैर जुबान है, वो नहीं जानते। लेकिन जब आप जाके आप जो है वो देसी नजर आते हैं, किसी स्वीडिश से स्वीडिश में बात करते हैं, वो एकदम अलर्ट हो जाते हैं, वो जानते हैं ये यहाँ के रहने वाले लोग हैं, अब ये नेटिव हैं और इनको यहाँ के सिस्टम का पता है। वो अच्छी तरह से आपके साथ जो है आपके मददगार बन जाते हैं। खुदा सबको प्यार करता है, सबकी मदद करता है, लेकिन जब कोई आए और आसमान की नेटिव लैंग्वेज में बात करना शुरू करे, गैर जुबानों में दुआ करना शुरू करे, आसमान इंटरेस्टेड हो जाता है। यू गॉट द अटेंशन। खुदा की, आसमान की जो है नजर आप पे हो जाती है, ये मेरी नेटिव जुबान बोल रहे हैं, ओरिजिनल जुबान जो है उसमें बात की जा रही है। इसलिए खुदा जो है वो ओरिजिनल जुबान उसने उसको बहाल किया। मसीह ने कहा वो नई नई जुबानें बोलेंगे। रूहुल कुदस आया, पहली चीज उसने गैर जुबानें दी। शागिर्द गए, उन्होंने देखा लोग जमा हैं, उन्होंने कहा क्या तुमने रूहुल कुदस पाया है? गैर जुबानों का तजुर्बा हुआ? उन्होंने कहा नहीं। उन्होंने कहा आज ही मीटिंग होगी। क्यों? ये जरूरी है, आप नेटिव लैंग्वेज में आसमान से राब्ता कर सके। जब आपको यह तजर्बा होता है तो इसका सिंपल मतलब क्या है? यू आर होम। डू यू हैव? आप घर पहुंच गए। आप घर में उनके ओरिजिनल जुबान में बात कर सकते हैं, और आप दूर हैं और घर आपकी शक्ल नहीं देख रहा, जैसी आप ओरिजिनल जुबान में बात करेंगे उन्हें पता लग जाएगा ये मेरे लोग हैं, ये मेरे खानदान के, मेरे घराने के हैं। So it's a very beautiful experience जो खुदा के लोग को करना चाहिए। खुदा ने आपके लिए सब कुछ अवेलेबल किया हुआ है। खुदा आपके लिए अवेलेबल है, उसका बेटा मसीह आपके लिए अवेलेबल है, उसका पाक रूह आपके लिए अवेलेबल है। इसलिए जब वो आएगा तो पहली चीज जो बहाल करेगा वो आपकी जुबान होगी। वो उसके लिए आपको इंस्टिगेट करेगा, और उसने कहा कि जब आप तौबा करते हैं तो पाक रूह इनाम में मिलता है आपको, और वो पहली चीज जिसके लिए आपको भारेगा जब आप उसके लिए दुआ करेंगे और आपको देगा, वो गैर जुबान है। इसलिए आप देखेंगे जो दुरुस्तगी से चलने वाले लोग हैं, पाकीज़गी से चलने वाले लोग हैं, दुआ करने वाले लोग हैं, उन्हें गैर जुबान ना भी मिले, वो कहते हैं बहुत दफा कुछ जुबानें मेरे अंदर जो है वो बबल करती हैं, ऊपर को आती हैं, मैं उन्हें दुबा देता हूं। क्यों? क्योंकि पाक रूह आपके अंदर है, वो नेटिव जुबान में बात कर रहा है। वो चाहता है आप आसमान की जो ओरिजिनल लैंग्वेज है उसमें बातचीत करना शुरू करें। आप उसको दुबा देते हैं। लेट हिम गिव यू दिस वंडरफुल एक्सपीरियंस। उसको बाहर आने दें, उसको सुने, उसको बोले। इट्स रियल। वो इतनी ही रियल है जितनी कि कोई भी जुबान जो आप सुनते और बोलते हैं रियल है।
कलाम की ये बातें काश आप समझ जाएं। मैं कल किसी को कह रहा था, मैं नहीं जानता कि मेरी जिंदगी में यहाँ पे मौजूद लोग इन बातों को समझेंगे कि नहीं, लेकिन मरने के बाद कोई ना कोई आएगा जो सुनेगा तो समझेगा और बताएगा कि वो क्या बातें किया करता था। काश हम इन बातों को अंडरस्टैंड करें। ये बड़ी कीमती और बड़ी वजनी बातें हैं। काश हम इनको समझ सकें। मैं इनको आप तक लाने के लिए पता नहीं कितने घंटे स्पेंड करता हूं, ताकि आप तक इसको कहां से जो पीसीज हैं उनको जमा करके, असेंबल करके, उनको जो है तरतीब दे के आपके सामने खड़ा होता हूं, ताकि आप इन चीजों को अंडरस्टैंड करें, आप इन चीजों को समझें। मैं ये इसलिए नहीं करता कि मैंने संडे को कुछ बोलना है। I come and I make myself prepare with full responsibility. कोई भी संडे ऐसा नहीं होता। सो इसलिए जब आप भी रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ इन चीजों को लेंगे, इनके साथ चलेंगे, आपकी जिंदगी में नए रेवलेशन आना शुरू हो जाएंगे, नई बरकत फ्लो करना शुरू हो जाएगी। तो इसलिए हमने मजहब से निकलना है, हमने क्रिश्चियनिटी से, चर्चैनिटी से बाहर निकलना है और हमने किंगडम ऑफ गॉड में एंटर होना है। क्योंकि अगर आप मजहब लेके जाएंगे, खुदा कहेगा मैं मजहब को नहीं जानता। You don't know what this thing is. मजहब वगैरह का उसको नहीं पता, ये उसकी चीज नहीं है, उसने ये बनाया नहीं, ये मैंने और आपने बनाया है। हम मजहब खेलते रहें, ठीक है, इट्स ओके। लेकिन अगर हम वहां जाके मजहब का जिक्र करेंगे, वो कहेंगे कि मैं तुम्हें नहीं जानता, आई नो यू नॉट, मेरी कभी तुमसे वाकियत नहीं थी। व्हाट अ ट्रेजेडी। और वो कहेंगे हमने नबूवतें की हैं, हमने मोजज़ात किए हैं, हमने ये किया, हमने वो किया है। लेकिन अगर मजहब के अंदर किया है तो उसकी कभी वाकफियत नहीं है, वो इन चीजों को नहीं जानता। ये चीजें मज़ाहिब के अंदर होती हैं, मसीहत के अंदर भी होती हैं। ये चीजें बुरी नहीं हैं, इनके मीन की बात है। अगर मैं उस जगह रह के ये सब कुछ कर रहा हूं, उस मेंटेलिटी के साथ सब कुछ हो रहा है, then it's dangerous। किंगडम मेंटालिटी के अंदर हमने रहना है कि हम एक किंगडम के, एक कंट्री के सिटीजन हैं। निकोदेमस आया मसीह के पास, जब उसने बातचीत की तो उसने कहा कि मैं कैसे खुदा की बादशाही को देख सकता हूं। मसीह ने क्या कहा? तुझे नए सिरे से पैदा होना है। वेरी सिंपल आंसर। कंट्री में किसको राइट मिलता है? जो बच्चा वहां पे पैदा होता है, उसका राइट है उस कंट्री का जो कुछ भी है। तो आपको वहां पे उस मुल्क में पैदा होना है। अगर नहीं हुए तो हो सकते हैं। You will get everything। आज के लिए इतनी बातें काफी हैं। काश मैं और आप इन बातों को जान सकें, समझ सकें। हमने मजहब की नहीं, खुदा की बादशाही की तलाश करनी है, क्योंकि मजहब खोया नहीं है, हमने बादशाही खोई है। आइए अपनी आंखों को बंद कीजिए, अपने सरों को खुदावंद पाक खुदा के हुजूर में झुकाइए।